तो हम सब लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे कोल्ड बिहेव करते हैं, बर्नआउट फील करते हैं, एग्रेसिवली एक्ट करते हैं, सेल्फिश होते हैं। तो ये सब तो मैंने वोंडेड मैस्कुलिन की ट्रेट्स बताई हैं। एंड इवन वोंडेड फेमिनिन की होती हैं। वो इनसिक्योर फील करते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में जीते हैं, ओवर बाउंड्रीज होती हैं, ओवरवेलमिंग बहुत इजीली फील करते हैं और कई बार बिल्कुल ही कोल्ड बिहेव करते हैं, डोंट ट्रस्ट इवन देमसेल्फ। Hello everyone, so today's topic was about divine feminine as well as divine masculine energies which resides within us. So most of the people think that हम लोग अगर मैं feminine हूँ तो मेरे अंदर divine feminine ही सिर्फ होगी energy. That's not truth. हम सबके अंदर दोनों energies होती है, masculine as well as feminine, जिसको हम लोग yin yang भी कहते हैं and काफ़ी वे में describe किया गया है। तो चलो बढ़ते हैं आगे and we will know कि what we will cover in our today's video. So the first thing we're going to cover in our today's video is what is divine feminine or masculine. एक छोटा सा रहेगा कि divine masculine क्या है और divine feminine क्या है, उनका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. Then we will come on traits of divine masculine, फिर traits of wounded masculine. Then we will cover how you can heal or activate masculine one. Divine masculine energy को कैसे तुम heal कर सकते हो अगर वो wounded है तो. फिर उसके बाद हम लोग फेमिनिन साइड पे आएंगे, ट्रेट्स ऑफ डिवाइन फेमिनिन, देन ट्रेट्स ऑफ वुंडेड फेमिनिन. डिवाइन फेमिनिन की ही बात चल रही है, ओके, एनर्जी जो हमारे अंदर है. देन हाउ यू कैन हील और एक्टिवेट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी विद इन यू. और फिर मैं डिस्कस करूंगी कि व्हेन दे आर अनबैलेंस्ड बोथ एनर्जीज, हाउ दे इफेक्ट आवर लाइफ एज वेल एज मैनिफेस्टेशन. एंड देन वी विल डिस्कस दैट इन डेली लाइफस्टाइल हाउ can we keep them balanced. So let's come to the first topic. Firstly, understand that what divine feminine or masculine is. So the divine feminine and the masculine energy are two sacred energies that are not limited to a specific gender, identity or sex, okay? Every single person has both of these energy present with them. And every single person is welcome to activate their own divine feminine as well as masculine energy. And we never have to feel ashamed because of working on two opposite energy. Like if I am a female, working on masculine energy is not a thing for which I should feel shame. So the divine masculine energy is aggressive, extrovert and go-getter. It is a dominant energy. It is the mentality that tells us we need to keep working and going after what we want. ये बहुत छोटी सी चीज़ बता रही हूँ, but we will discuss whole thing ahead. Then the divine feminine energy is introspective. It is soft, nurturing, healing and sensual. You will find divine feminine in the creation of art, in your dream space, in your intuition and in your connection to the divine. Mother nature जो होता है, divine feminine energy is a creative life force. तो आई होप यू गाइज गॉट की डिवाइन फेमिनिन क्या चीज़ है और डिवाइन मैस्कुलिन क्या है. However, when one is too active, it can leave you feeling unbalanced and overwhelming. तुम्हें लगेगा कि यार कुछ तो है जो मेरे को ठीक नहीं लग रहा है. I'm not feeling enough. I'm not being able to feel my present. तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी एनर्जीज बैलेंस नहीं है. Both energies serve to complement each other. And there should be an appreciate flow of both energies present in our lives. The flow may differentiate depending on our circumstances, mood, and the task at hand. जो भी हमारा काम है. For suppose, if a person is working on their profession, तो उस टाइम पे ज़्यादा masculine energy होगी. बट वहीं अगर कोई टैरोट वाला होगा तो उसके लिए ज़्यादा feminine energy होगी. ऐसे ही सिमिलरली हम लोग जिस टास्क में हैं उस टास्क के हिसाब से हमें वो एनर्जी को यूज़ करना है ना. तो कई बार होता है हमें लगता है कि यार यहाँ पे इमोशंस को हटा देना है, यहाँ इमोशंस कम यूज़ करना है. तो ऐसे ही हमारी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है उसे हमें बैलेंस करने के लिए अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे एक्ट्स करने होते हैं जिससे कि हमारी दोनों एनर्जी बैलेंस रहे. फॉर एग्जाम्पल, यू मे एक्सेस मोर मैस्कुलिन एनर्जी वाइल इन द वर्क प्लेस बट मोर फेमिनिन एनर्जी वाइल एट होम रेस्टिंग और enjoying your life at travel even. Your divine energies are already within you and all you need to do is unlearn and heal the patterns disconnecting you from them to be balanced. So I will provide the
इमेजेस दैट विल मेक यू अवेयर कि क्या किस में होते हैं ट्रेट्स, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ. तो लेट्स मूव अहेड ऑन ट्रेट्स ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन. डिवाइन मैस्कुलिन की बात करूँ, यानी कि ये हमारे अंदर होने चाहिए. तो अपने आप नोट कर लेना कि क्या तुम्हारे अंदर कमियां आ रही हैं. साथ साथ ही इमेज भी प्रोवाइडेड होगी, तो इसलिए तुम इजीली देख सकोगे कि क्या प्रॉब्लम है. नोट डाउन दैट एंड अब तुम्हें इन चीज़ों पे काम करना होगा. ओके, सो द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इज असर्टिव, एक्शन टेकर, कॉन्फिडेंट, लॉयल, जेंटल, आउटर वर्ल्ड, प्रोटेक्टिव, प्रोजेक्टिव, एक्टिव, गिविंग, एक्सपांसिव, कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल, फोकस्ड, लॉजिकल, सपोर्टिव होता है वो. ठीक है, स्टेबिलिटी, क्लैरिटी, बाउंड्रीज, करेज, डिसिप्लिन, असर्टिवनेस. आई थिंक 2-3 रिपीट हो गया, मेरे को भी लग रहा है. बट इवन, और ये सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, ये फीमेल्स के लिए भी है. जो भी कोई फीमेल देख रही है, दे कैन इवन नोटिस कि क्या वो चीज़ें हैं उनमें. अगर वो नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड हो रहे हैं, जिसके कारण वो अपनी लाइफ में फुलफिल्ड नहीं फील कर रहे होंगे, प्रेजेंट नहीं लिव कर पा रहे होंगे, और बहुत इश्यूज आते हैं. आई कांट इवन एक्सप्लेन इन दिस. तो वो वुंडेड वाले में बताऊंगी बहुत अच्छे से. अभी तो ट्रेट्स नोट करो तुम्हारे अंदर जो तुम्हें लगता है कि नहीं है, या अनबैलेंस्ड है, या कम है. नोट दैट. So, masculine energy is an energy that is all about action, where feminine energy is receptive, actually flowing. Masculine energy is about moving forward with purpose. Masculine energy is competitive, focused or driven by the desires to conquer challenges. मैंने बहुत बारी बोला ना कि वॉरियर माइंडसेट में रहो, विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहो. क्यों? क्योंकि विक्टिम जो माइंडसेट है ना, वो वुंडेड फेमिनिन का है. जब तुम वॉरियर माइंडसेट में रह रहे हो तो तुम डिवाइन मैस्कुलिन को एक्टिवेट कर रहे हो. नॉट ओनली यू आर वर्किंग ऑन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, बट एट द वेरी सेम टाइम यू आर वर्किंग ऑन फेमिनिन एनर्जी इवन. तो एक्ट्स तो मैं डिस्कस करूंगी, बट इवन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को लाइफ में चेंज करनी होती है, जिसके कारण हम लोग फील नहीं कर पाते हैं कंप्लीट, एंड इवन देन हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं पॉजिटिव चीज़ें. Not just in the sense of winning, but in overcoming obstacles, setting goals and achieving them. It's all about divine masculine energy. It's the energy that pushes you to take risk, to act even when you are afraid, and to stand up for what you believe in. As I said in the above one, that कि confidence बहुत important है. Divine masculine confidence से चलता है, उसमें करेज है. वो देखना चाहता है कि भाई अगर मेरे में ये बिलीव्स हैं, मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ, तो आई एम गोना डू थिंग्स फॉर दैट. आई होप यू आर गेटिंग. एंड दिस इज़ नॉट फॉर ओनली मेल्स, इट इज़ इवन फॉर फीमेल्स, क्योंकि हम सबके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इवन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इज प्रोटेक्टिव. इट हेल्प्स यू एक्ट ऑन इंट्यूशन. जहाँ डिवाइन फेमिनिन होती है वो इंट्यूटिव होती है, वहाँ मैस्कुलिन उस इंट्यूशन पे काम करना करता है. लाइक इफ़ यू गॉट कि ये पाथ मेरे लिए राइट है, तो उस चीज़ पे एक्शन लेना, उस पाथ की तरफ एक्शन लेना, वो डिवाइन मैस्कुलिन का काम होता है. तो अगर किसी के अंदर करेज नहीं आ पाती कि मेरे को लग तो रहा है ये चीज़ सही है, बट आई शुड डिस्कस इट इवन विद अदर्स एंड देन मेक डिसीजन, तो तुम्हारी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड है, उस पर तुम्हें काम करना है. इफ़ यू गेट, तुम्हें प्योरली फील हो रहा है, गट फीलिंग आ रही है कि यही सही बात है, देन डोंट थिंक कि कौन सही है कौन गलत है. जस्ट गो एंड गेट दैट प्लेस. तुम्हारी यूनिवर्स ने पहले हेल्प कर दिया. यू जस्ट हैव टू टेक द एक्शन बाय योर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी. सो इट इज़ द पार्ट ऑफ यू दैट वॉन्ट्स टू सेफगार्ड व्हाट यू लव. प्रोटेक्टिव बोला था ना, तो मैस्कुलिन एनर्जी प्रोटेक्टिव होती है. वेदर दैट्स अबाउट योर फैमिली, दैट अबाउट योर वैल्यूज, दैट्स योर ड्रीम्स, और इवन योर ओन सेंस ऑफ सेल्फ. रिस्पेक्ट इज द मैस्कुलिन एनर्जी what love is to feminine energy. तो masculine energy ना रिस्पेक्ट मांगती है, जहाँ feminine energy लव मांगती है. तो अगर अपने छोटे से में जानना है, तो जो masculine energy होती है वो थोड़ी प्रैक्टिकल होती है, क्योंकि वो करेज है, कॉन्फिडेंस है, वो एक्शन ओरिएंटेड है. एंड एट द वेरी सेम टाइम जो feminine energy है वो इमोशनल होती है. तभी तो फीमेल्स ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. वी ऑल हैव टू बैलेंस अवर एनर्जीज. तो ज़्यादा होगा तो भी हमें प्रॉब्लम होगी, कम होगा तो भी हमें प्रॉब्लम होगी. The masculine energy even helps you to set boundaries, take charge when needed. If you feel कि this is something I have to end, and तुम उस चीज़ को end नहीं कर पाते हो, तो you even have to work on your masculine energy. क्योंकि courage नहीं है, again तुम्हें लग रहा है कि this is something I can't end, बहुत टाइम से ये था, ये वो ओवर थिंकिंग चल रही है, तो masculine energy पे काम करना है. Even थोड़ी सी तो feminine भी wounded है, क्योंकि तुम
ओवरवेलमिंग फील करो, बट दैट्स नॉर्मल. यू हैव टू वर्क ऑन योर मैस्कुलिन एनर्जी टू हैव द करेज. तो अब बढ़ते हैं ट्रेट्स ऑफ वोंडेड मैस्कुलिन के. अगर तुम ये कर रहे होगे तो तुम इजीली पता लगा सकते हो कि तुम्हें क्या चीज़ पे काम करना है. वैसे तो मैंने डिवाइन मैस्कुलिन के बताए हैं ट्रेट्स, एंड इवन मैं इमेज भी डाल दूंगी. यू कैन गेट बाय दैट इवन कि तुम्हारे अंदर कौन से ट्रेट्स हैं जिन पे तुम्हें काम करना है, बट दिस विल इवन हेल्प द मोर. तो यू हैव द हैबिट ऑफ ओवर कंट्रोलिंग. ये वोंडेड मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ मैं. ओवर कंट्रोल करने की, सराउंडिंग्स को कंट्रोल करने की. मैंने बहुत बारी कहा है कि योर फोकस शुड बी ऑन टू यू, नॉट ऑन अदर्स. कि वो ऐसे कर रहा है, उसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, वो इस चीज़ को ऐसे नहीं कर रहा है, इसलिए वो देखियो तो आगे उसको प्रॉब्लम आएगी. डोंट कंट्रोल अदर्स, और इवन डोंट ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स दैट आई नो व्हाट इज़ द बेस्ट एंड दिस शुड बी द वे टू डू दिस. तो इवन जब वोंडेड मैस्कुलिन होती है तो लोग एब्यूसिव होते हैं. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप भी हो, बट रिकॉग्नाइज करके देखना. आप कहीं पे भी किसी के भी साथ हल्का सा भी अगर हो रहे हो तो वर्क ऑन योर वोंडेड मैस्कुलिन एनर्जी. ऑलवेज ट्राई टू कम्पीट विद अदर्स. बोला था ना कि कंपेयर बहुत होता है, फोकस खुद पे नहीं होता. कंपैरिजन करना है कि अच्छा उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, उसकी कैसी चल रही है, मैं सबसे आगे ही हूँ ना. दैट्स समथिंग यू आर वोंडेड मैस्कुलिन. एंड इवन यू फील द अर्ज टू डोमिनेट एनर्जी ज़्यादा होती है. क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा करने की आदत होती है. बहुत ज़्यादा तो क्या, थोड़ा सा भी है तो यू हैव टू वर्क. जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करके रखते हैं उनमें ये आप कभी इशू नहीं देखोगे. यू विल हैव देम ऑलवेज कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कैसे सोच रहा है, क्या बोल रहा है, वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है. जो भी वोंडेड मैस्कुलिन होते हैं ना, जिनके अंदर ये वोंडेड मैस्कुलिन की एनर्जी होती है, नॉट मैस्कुलिन वंस, ओके, दे विल नेवर सपोर्ट एनीवन. अगर आप उनसे सपोर्ट मांगने जाते हो ना, दे विल मेक एनी एक्सक्यूज़, जो भी उनके पास हो सकता है वो एक्सक्यूज़ बनाएंगे और तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे कभी भी. और अगर तुम अवेयरनेस लाओ कि तुम तो नहीं ऐसा कर रहे किसी के साथ, तो ये भी एक साइन है कि तुमने अपनी एनर्जी नहीं बैलेंस की हुई है और तुम्हें उसको काम करना है. नाउ एग्रेशन, बहुत जल्दी तुम रिएक्ट कर जाते हो, बहुत जल्दी तुम्हें गुस्सा आ जाता है. तो दिस इज समथिंग यू हैव टू वर्क. इवन कॉन्फ्रंटेशनल, अवॉइडेंस, अनस्टेबल, these are all the qualities of or traits of wounded masculine. A perfect example of too much divine masculine is hustle culture. They always want to work more and more. तो अनबैलेंस तब भी हो रही है जब तुम ओवर यूज़ कर रहे हो उसका, तब भी हो रही है जब तुम बिल्कुल ही नहीं यूज़ कर रहे हो उसको दबा रहे हो. अगर वो किसी भी चीज़ से वुंडेड हुई है, कोई भी सिचुएशन लाइफ में ऐसी हुई थी जिसके कारण तुम्हें लगा कि मुझे ऐसे एक्ट नहीं ही करना चाहिए लाइफ में. लाइक काफ़ी होता है ना कि काफ़ी लोगों को कोई भी ब्रेकअप हुआ, कुछ भी हुआ, देन आफ्टर दैट फील कि हमें अब इमोशन से काम ही नहीं करना है. सो दैट्स नॉट समथिंग वी हैव टू डू. हम खुद को क्यों पनिश करें कि किसी ने कुछ भी किया उसके लिए खुद को क्यों पनिश करना है. बिहेव इन द मैनर यू वर बिहेविंग. वो पर्सन की गलती वो नहीं वैल्यू कर पाया. सो कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल दैट आई वाज गिविंग, टू मच ऑफ मैस्कुलिन is hustle culture, which sends the message that we have to always hustle, be overly productive, and sacrifice sleep or self-nourishment for the sake of purchasing things that we want or pursuing money or our career. So these all are the things stuff even which people serve on internet. I have seen a lot of time, but too much of this energy is not good for us. So you need to balance it by following divine feminine acts like rest, self-reflection, sleep that you need in order to recover from the divine masculine hyper-productivity. So too much of masculine energy without the softened influence of feminine energy can lead you to burnout, rigid thinking and emotional disconnection. I've seen a lot of time people being so rude, people being so emotional-less people. They act like cold behavior actually, that they don't even care what the other person will feel and how their karma was working. Let's leave that. And if you are too much this kind of person, then you have to work on your energies, balance them so that you could get yourself better person. If you are too much kind, so humble, if you procrastinate, be lazy, you don't take action even when you have ideas, you have knowledge, you have intuition. तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें चीख के बोल रही है कि नाउ दिस इज द राइट पाथ ऑन विच यू हैव टू वर्क, ऑन विच यू हैव टू टेक एक्शन, बट यू आर जस्ट लेइंग इन द बेड और जस्ट थिंकिंग अबाउट कि वी विल डू इट टुमारो और मे बी येस्टरडे वगैरह वगैरह जो भी चल रहा है.
दिमाग में, लीव दैट ऑल. Basically, you are not being able to create them in your actions, then your masculine energy is even wounded because you are not working the way you have to. आइडियाज तो है लेकिन उस पर काम ही नहीं करना है कि कल कर लेंगे, अभी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अभी थोड़ा फन कर लेते हैं. किसी के साथ बहुत ही एक्सट्रीम हम्बल हो कि खुद को इग्नोर कर रहे हो. इतने काइंड हो कि तुम देख ही नहीं रहे हो, तुम्हारा टाइम तुम्हें जो देना था तुम्हारी लाइफ के लिए वो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो. सो दीज आर इवन the things which you have to work on. Now let's come to the topic which was about how you can heal or reactivate your masculine energy. To heal wounded masculine, you have to work on your Manipura chakra. Manipura chakra is solar plexus chakra, the third chakra that was about confidence, that was about self-concept. That you can go after your dreams, be passionate about your desires, but also have to allow yourself to surrender, to flow with life. And to rest, to invite pleasure in life. That's okay to feel hurt. That's okay to feel sad. Why? I don't know. People feel ki I should not feel this. It's okay to feel your emotions. If you want to solve any kind of problem, the first thing you should do is to find the source, accept that, and then come to how you can fix it. If you don't accept your emotions, if you don't accept the thing or the source that was making all the problems, then you can't actually work ahead. अगर तुम ऊपर से काम कर रहे हो कि हाँ इस टाइम पे ये हुआ था या कोई भी रिग्रेट आया उस पर काम करने में लगे हो कि भाई इट्स ओके, नथिंग विल कम आउट इफ यू डोंट वर्क ऑन इट सोर्स कि पहले रिग्रेट शुरू कहाँ से हुआ है, या मुझे हर बारी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम होती क्यों है, मैं इमोशंस फील नहीं कर पाती तो क्यों नहीं फील कर पाती हूँ. सोर्स पे जाना इंपॉर्टेंट है, पहले उसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन ओनली यू विल फील कि हाँ वो चीज़ जेन्युइनली फिक्स हो गई है, वो जेन्युइनली अब हील है. ऊपर से तो कितनी भी मरहम पट्टी कर लो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा. चोट को ढक देना ही काफ़ी नहीं होता, उस पर मरहम लगाना भी ज़रूरी होता है ताकि वो जल्दी भरे. So how you can heal your masculine energy, divine masculine that resides within you, even if you are a male or if you are a female. Lighting a candle on your place, जहाँ पे भी, जैसे अगर आप कोई स्टडी टेबल है वहाँ बैठते हो, कोई टेबल है, कोई डेस्क है, जहाँ पे भी आप काम करते हो या जहाँ पे भी आप रख सकते हो, you feel calm with that. Okay, have a candle with you. Light a candle. If you can't do with candle, light a diya. तो बेसिकली आपको फायर एनर्जी से कनेक्ट करना है, फायर तत्व से, क्योंकि वो सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील करता है. सो यू हैव टू कनेक्ट विद दैट. वर्किंग ऑन द ट्रेड्स यू रेजोनेट विद, इवन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क्स दैट नीड you to be responsible, as well as performing the traits of divine masculine will help you resolve the wounded or unbalanced energy. तो as I said before कि तुम्हारी एक पर्टिकुलर ट्रेट होगी जिस पे तुम्हें काम करना होगा. फॉर सपोज किसी के लिए होगा कि करेज नहीं आता उसके अंदर, तो वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उसके खुद को लेके कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना. तो यू हैव टू वर्क ऑन योर करेज पे कैसे काम कर सकते हो? फर्स्टली बाय गिविंग योर सेल्फ मोटिवेशनल स्टफ, है ना, बाय कंटेंट, बाय म्यूजिक, एनी वे यू लव. तो वहाँ से दोगे तो पहले तुम्हारा माइंड सेट रीप्रोग्राम होगा कि तुम्हें अब अपने अंदर करेज डेवलप करनी है. सब लोग करेज से काम करते हैं. द कंटेंट यू आर फीडिंग योर सेल्फ कंटिन्यूसली विल वर्क. तुम्हारा माइंडसेट चेंज होना लग जाएगा, रीप्रोग्रामिंग होगी, तो तुम्हारे अंदर अपने आप से ही करेज आने लग जाएगा. बाकी इवन व्हेन यू फेस द सिचुएशन, शो द करेज, शो द कॉन्फिडेंट सेल्फ, रीप्रोग्राम योर थॉट्स बाय सेइंग कि आई कैन डू दिस, व्हाई आई शुड स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग दिस. अगेन यही बोलूँगी, पॉजिटिव होना चाहिए जो भी तुम करो, किसी को भी हर्ट ना करे. कुछ ऐसा करो जो लाइफ में और लोगों की लाइफ में भी इवन अच्छा पॉजिटिविटी फैलाए, क्योंकि वही चीज़ तुम्हें वापस मिलती है. तो जैसे तुम दोगे वैसा ही मिलेगा. और गिव इट अनकंडीशनली ही फिर वो फ्लो होकर तुम्हारे पास आएगा. जब तुम्हें ज़रूरत भी होगी तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आएगा. इवन मैस्कुलिन एनर्जी को हील करने के लिए एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई मोस्टली प्रेफर दिस थिंग, एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ दैट बिल्ड स्ट्रेंथ. मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी कि हाउ मूवमेंट हेल्प्स यू रिकवर योर इमोशंस और एवरीथिंग अबाउट दैट. So you can even check that one, or if you don't want to, then simply engage in activities you love. Exercise karo. Do that kind of exercise which need your whole movement of body, not only focus on building strength or making your body. तो करो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इवन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ फुल बॉडी. You will feel the courage, confidence and more of divine masculine energies within you working by themselves. You are not taking anything, you are not doing anything, but just by exercise you will feel कि हाँ चेंज हो रहा है. अब पहले जो तुम करेज नहीं दिखा पाते थे, अब तुम करेज दिखा पा रहे हो. और भी जितने भी ट्रेड्स थे
अगेन बोलूँगी कि उन सबको बैलेंस करने के लिए यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू keep the balance between the masculine as well as feminine energy. So be patient, act patiently, and give yourself time to rest. Have everything off from you. Like कोई गाना नहीं सुनना है, कोई वीडियो नहीं देखनी है, जस्ट प्रेजेंट में जीना है. फैमिली के साथ बैठ गए, उनसे बातें की, या फिर अपने आप में ही बैठे हो, नेचर में बैठे हो. तो दीज आर द स्मॉल प्रैक्टिसेस. आई थिंक 15 मिनट लगते हैं मुश्किल से इस चीज़ को करने में, लेकिन कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो हम सोचते ही नहीं है. So now let's move ahead to the traits of divine feminine. So इसकी भी आपको इमेज मिल जाएगी, but still I will try my best कि मैं explain कर सकूँ. Divine feminine energy is intuitive, nurturing, patient, gentle, receptive, inner world, knowing yourself, empathetic, passive, contractive, unconditional love, understanding, tenderness, kindness, creative, feeling stillness, flow, surrender, healthy, sensitive, emotional ease and allowing, being restful. So ये तो मैंने कुछ ऊपर से ट्रेट्स बता दी हैं जो भी मैस्कुलिन की डिवाइन फेमिनिन की होती हैं. देन इवन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इज अबाउट बीइंग ओपन, बीइंग रिसेप्टिव and connected to your inner world. It's the part of you that allows yourself to feel deeply, to take pause or to receive rather than constantly doing or achieving. इवन जब आप किसी को अलाउ नहीं कर पाते हो ना खुद से प्यार करने देने के लिए, खुद के साथ काइंड बिहेव करने के लिए, कई लोग होते हैं ना जो डाउट करते हैं कि ये मेरे से इतना प्यार से क्यों बात कर रहा है, ये ऐसे क्यों है. थोड़ा सा डाउट होना इट्स नॉर्मल, बट इतना एक्सट्रीम डाउट होना कि आप हर बार ही डाउट कर रहे हो, तो दैट इज समथिंग यू हैव डिवाइन फेमिनिन वुंडेड. ओके, इसमें भी सेम ही कहूँगी, मेक द लिस्ट. जो भी बताया है उनमें आपका कौन सा है जो वुंडेड है या आपको लगता है कि ये तो मेरे अंदर नहीं है. So note down those things and work on those. It's about having the patience to sit with your feelings, experiences, and even discomfort without rushing to fix them or to control them. It's also about being vulnerable, which means having the courage to be honest about your emotions, needs, and desires without fear of judgment. Divine Feminine allows you to trust what you feel. It's about being present with your experience and giving yourself permission to seek pleasure. Everyday moments even, like enjoying a good meal, soaking in the warmth of sun, or laughing with friends. Feminine energy desires to be cherished. This is not about dependency, it's about recognizing that being seen, valued or nurtured by others is healthy. Over नहीं, but हाँ, आपको पता है कि आपने ये चीज़ लेनी है. मैं पहले भी बोलती थी कि सेल्फ पे काम करना इंपॉर्टेंट है, बट यू कांट इग्नोर योर सोशल कनेक्शंस. हाँ ठीक है, टॉक्सिक कनेक्शंस से डिस्कनेक्ट करो खुद को, बट दैट डजंट मीन कि तुम अपने कनेक्शंस में रहोगे ही नहीं. सो दैट्स ईगो. सो यू हैव टू बैलेंस देम. ओके, यू हैव टू वर्क एंड फील कि आई एम लव्ड, आई एम ओपन टू फील लव, आई एम ओपन टू रिसीव लव. सो दीज ऑल थिंग्स आर आवर नेचुरल नीड्स. It's okay to receive those things without feeling guilty or like you have to earn them. Okay, it's something we all need, and it's the nature of divine feminine energy, so you have to accept that and let yourself be loved. At its best, divine feminine energy allows you to be loving and being open-hearted, creative and expressive, receptive to new ideas, experience and relationship, free-flowing, adaptable, and in tune with the life natural rhythms, graceful in how you move through challenges, gentle to yourself and others, playful, finding joy in little things, holistic, seeking the bigger pictures and how everything connects, heart-centered, leading you, compassion, and empathetic. The beauty of divine feminine is that it does not demand perfection. It invites you to simply be there, to feel, to receive, or to trust that you are enough exactly as you are. And most of the time people have their divine feminine activated at in the love. अब देखते हैं ना, जब आप प्यार होता है किसी से, तो एक इंसान खुद को ग्रूम भी कर रहा होता है, एट द वेरी सेम टाइम वो सबके साथ प्यार से बात कर रहा होता है. क्यों? क्योंकि उसे पता है कि नाउ वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन है, एंड उस टाइम पे एक इंसान बैलेंस्ड होता है. क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि आई एम इवन रिस्पॉन्सिबल. मुझे जो मेरी लाइफ में है, मेरे गोल्स जो लव को छोड़ के हैं, वो चीज़ें भी करनी है, और जो मेरा एक गोल है रिगार्डिंग लव, वो भी फुलफिल करना है. सो वाई कांट वी लव अवर सेल्फ?
Instead of falling in love with another person, if you don't have anyone, fall in love with your own self. जब तक तुम खुद की कंपनी एंजॉय नहीं करोगे, तुम किसी और के साथ वैसे ही नहीं फील कर पाओगे इनफ, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मे बी आई एम नॉट इनफ. यू विल डाउट योर सेल्फ कि क्या मैं इसके लायक भी हूँ. व्हेन यू आर नोन अबाउट योर ओन कंपनी कि हाँ मैं एंजॉयबल हूँ, हाँ मेरे साथ मैं ही खुद खुश रहती हूँ, तो एनी अदर पर्सन विल इवन फील. So now let's come ahead to the traits of divine feminine wounded one. So wounded divine feminine always behave as victim. मैंने पहले भी कहा था कि उसे होता है कि मैं बेचारी हूँ या मैं बेचार, मतलब even any person have that. फीमेल्स पे ही बात नहीं चल रही, मेंस के लिए भी है ये. वो victim behave कर दिया, वो over emotional, over sensitive, that those people don't pay attention to things practically. Codependency, that they want someone to be always with them. Even काफ़ी लोग होते हैं ना कि मुझे बाजार जाना है, तो चलेगी क्या साथ में, मुझे यहाँ जाना है तो चलेगी क्या, तू है तो मैं चल रही हूँ. तो थोड़ा होना ठीक होता है, बट ऑलवेज ऐसे होना ये बहुत ही खराब है, बिकॉज को डिपेंडेंसी विल नेवर लेट यू हैव योर मैनिफेस्टेशन इवन ट्रू. ओके, दे फील एंशियस, अलोन अ लिटिल बिट, और इवन समटाइम्स फील लाइक एवरीवन हैज़ अ आई ओवर देम. दे आर मैनिपुलेटिव, पावरलेस, weakness is something that they feel the most in themselves. Holding things or are needy of energy and of most of the things उनको चाहिए होता है ज़्यादातर. Too much feminine energy can cause stagnation, frustration, waiting for life to happen instead of creating it. बोला था ना पहले भी, डिवाइन मैस्कुलिन में भी बताया था मैंने कि एक पर्सन के पास आइडियाज तो है लेकिन वो उस पर काम नहीं करना चाहता है. तो इन दिस इवन कि वो चाहते होते हैं कि भाई ठीक है, जो है लाइफ अपने आप फ्लो कर दे, जो है वो अपने आप हो जाए. आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी एक्शन. So these are the traits. तो उसका थोड़ा सा ऑपोजिट है इसमें, which is when you don't have ideas but the strength or courage and even being at action taker. courage है, तुम बस फालतू में बस मोटिवेशन फील करो, हाँ करेंगे आज हम करेंगे, और करने के लिए बैठते हो तो तुम्हारे पास कोई आइडिया ही नहीं है कि कैसे करना है काम, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, कोई रूटीन ही नहीं है कि क्या है टू डू लिस्ट, करना क्या है. आइडिया इजली नहीं होते हैं. इवन इन एक्सरसाइज सम पीपल फील कि करेज तो दिखा दी अच्छे से कि हमें एक्सरसाइज करनी है, अब पता ही नहीं है कौन सी एक्सरसाइज पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, या बस हवा में ही है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं एक्सरसाइज के नाम पे, बस एंजॉय कर रहे हैं. 4-5 बारी भाग लिया एंड दैट्स इनफ. सो दिस इज नॉट द वे. दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन. वुंडेड फेमिनिन एनर्जी है ये. सो वुंडेड फेमिनिन एनर्जी डोंट एनालाइज और थिंक विद पेशेंस. So try to recognize if you behave restless, obsessively running behind your goals and can't take a rest, then it's a sign that your feminine energy is unbalanced or it is needed for you to work on it. Now let's move ahead and know how you can heal or activate divine feminine energy. If you want to solve any kind of problem, the first thing you should do is to find its source. मैंने मैस्कुलिन में भी बोला था, इसमें भी बोलूँगी that the source is the most important thing. अगर तुम ऊपर से किसी भी चीज़ पे काम करने की कोशिश करोगे वो काम नहीं करेगी, बट अगर तुम उसमें ढंग से काम करोगे it will work. Part of being divinely feminine is being able to offer love, compassion to yourself and those around you. But please remember, you can't pour from an empty cup. In order to fulfill, embrace a compassionate and loving mindset, you must first offer love and compassion to yourself. Some self-love practices that I do was like mirror magic, where I look into the mirror every day for about 10 to 20 minutes a day and speak the words of affirmation to myself with words of love while looking into my eyes. Okay, आपने क्या करना है, मिरर के सामने खड़े हो जाना है एंड यू फील योर सेल्फ. ठीक है, फील लाइक अनदर पर्सन वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, ऐसे एज्यूम करना है कि तुम तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ या तुम्हारा प्रेजेंट, जैसा भी तुम फील करना चाहते हो, तुम्हारा ही एक सोल सामने खड़ी है तुम्हारी, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो जैसे एक प्यार में होता है, एंड से द वर्ड्स ऑफ काइंडनेस टू योरसेल्फ. While speaking those words, I feel them, and when I'm finished, I stare into my eyes for 50 seconds almost, with love, compassion towards me. Expressing gratitude, that works the most. Add gratitude and appreciation for yourself. Often we look of appreciation from the world. Validation ढूंढते हैं ना हम लोग कि ये बंदा हमें validate कर दे, वो हो जाए, लोग हमें appreciate करें. But even when we by ourselves appreciate us for the progress we have made, we feel healthy and contented.
इवन अप्रिशिएट द वर्ल्ड अराउंड यू। आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी, लाइक किसी का बनाया खाना आपको अच्छा लगा, अप्रिशिएट इट। आपने किसी को देखा, किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, अप्रिशिएट देम कि यार बहुत अच्छे लग रहे हैं कपड़े, विद अ गुड इंटेंशन। मैंने पहले ही बोला था कि कर्मा कम्स बैक टू यू। जब आप फ्लो कर रहे हो ना पॉजिटिव एनर्जी, तो आपको भी पॉजिटिव ही मिलेगी। यू विल सी कि आपके अराउंड का जितनी भी सराउंडिंग्स हैं वो काम होने लग गई है, सभी बहुत ही पेशेंटली एक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव रह रहा है। अप्रिशिएट थिंग्स लाइक आई एम सो लकी, आई हैव दीज सराउंडिंग्स। बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जिसके लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बट हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। लाइक आई एम सो लकी दैट आई गॉट माई सेल्फ आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। So, in order to heal your divine feminine wounded or unbalanced, journal your thoughts and emotions, meditate regularly, prioritize self-care, and cultivate receptivity, allowing yourself to receive love and support from others even and from yourself even. Take up a feminine hobby. I have discussed this maybe before even, but I remember that doing any feminine act, जो हम लोग पहले फेमिनिन्स को कहते थे ना कि लड़कियां तो यही काम करती हैं, लड़कियां पढ़ती वढ़ती नहीं हैं, बट सिर्फ वो घर के काम करती हैं कुछ भी। तो वो एक फेमिनिन हॉबी आप भी पकड़ो जो आपको लगता है कि आपको सूट भी कर जाएगी। दैट हॉबी यू हैव टू डू, मतलब कुछ भी, नॉट ओनली हॉबी बट एन एक्ट, लाइक पौधों में पानी देना। आई विल डिस्कस इट। इवन डांस। तो डांस इज समथिंग वी नेवर रियली डू विद फुल एन्जॉयमेंट। तो डांस with yourself. Enjoy the movement with yourself. This will not only balance or heal your divine masculine or even feminine one. Actually feminine पे बात चल रही है और मेरे दिमाग में masculine नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। So डांस जब आप करते हो फुल enjoyment, आप उसे enjoy करो। ये नहीं सोच रहे कि कोई मेरे को देख रहा है, कोई ये है। आपको लगता है बाहर नहीं करना, खुद के साथ करो। एक रूम में खुद के साथ डांस कर लो, मिरर के सामने डांस कर लो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे डांस कर लो। You can use the music जैसा भी आपको पसंद हो, तो enjoy with yourself। एंड ये सब कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी हैं। मैंने इनमें से मोस्ट ऑफ द एक्ट्स खुद भी किए हुए हैं एंड मैं अभी भी करती रहती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ जो एक्चुअली में काम करते हैं। वो नहीं किए मैंने शेयर जो नहीं काम करते हैं। मुझे भी पता है यार, अगर तुमने क्लिक किया है तो डेफिनेटली यू वांट टू हील योरसेल्फ एंड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। टू हील वुंडेड फेमिनिन यू हैव टू वर्क ऑन योर स्वादिष्टान चक्र, क्योंकि वो ही हमारे लव लाइफ एंड मतलब इमोशंस के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। और कनेक्ट विद द अर्थ एलिमेंट बाय बीइंग इन नेचर एंड स्पेंडिंग टाइम इन ट्रैवल, हैविंग वाटर थेरेपी, कनेक्टिंग विद प्लांट्स, गार्डनिंग, एडिंग क्रिएटिविटी और डूइंग समथिंग क्रिएटिव। एट लास्ट आई वुड से कि कुकिंग इवन हेल्प। मैंने बोला था ना फेमिनिन एक्ट कोई आपको पकड़ना है, तो आई प्रेफर द मोस्ट कुकिंग, क्योंकि मेरे को भी जब लगता है कि आई एम नॉट फीलिंग माई इमोशंस, आई एम नॉट बीइंग गुड टू अदर्स इवन, तब मैं कुकिंग पकड़ लेती हूँ। आई लव टू कुक। तो बाय डूइंग कुकिंग you will feel instantly, you will after you done with your cooking, you will feel कि आपके अंदर पेशेंस आ गया है, आपके अंदर बहुत लविंग नेचर आ गया है, बिकॉज अन्नपूर्णा गॉडेस एक्टिवेट्स इन यू। एंड इट इज लास्टली आई वुड लाइक टू से कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन दोज पर्टिकुलर ट्रेट्स विद whom you were resonated। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी थी मैं डिस्कस कर सकती, मैंने की अपनी तरफ से, बट आपको जो एक्ट्स होती हैं जो आपको रेजोनेट करें कि ये हमारे अंदर अनबैलेंस्ड है, ये इन पे हमें काम करना है, वर्क ऑन दोज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम उन पर्टिकुलर पे काम करो। बट एट द वेरी सेम टाइम इफ़ यू प्रेफर टू डू एनी फेमिनिन एक्ट, you will have yourself activated, those emotions more activated in you. So जो उनसे भी पर्टिकुलर एक्ट्स थे या ट्रेड्स थे जिन पे आप रेजोनेट हुए हो, उन पे काम करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू वर्क ऑन देम। एंड इवन मेडिटेशन में मैं आप लोगों को एक मेडिटेशन रिकमेंड करना चाहूँगी विच इज़ अबाउट ग्रीन तारा मंत्र। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं लिंक ही प्रोवाइड कर दूँ डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आप उसको सुन सको। सो दैट मंत्र इवन वर्क्स मोस्ट विद डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि divine feminine is about emotions and love, and that mantra, that goddess, was even for the love, compassion and emotions. So with that even you will be able to heal your wounded masculine or feminine energy even. So now let's move ahead in daily lifestyle, how you can keep them balanced, both energy, divine masculine as well as feminine मैं बोल रही हूँ। So जैसे तुम्हें मैंने बोला था कि ये पर्टिकुलर ट्रेट्स पे तो काम करना ही है, और जब तुमने काम कर लिया है तो तुम कैसे बैलेंस्ड रख सकते हो दोनों एनर्जीज को। तो टू बैलेंस मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, अनुलोम विलोम वर्क्स द बेस्ट। इट्स अ योगा, यू कैन डू दैट। गूगल करना तुम्हें आराम से मिल जाएगा कि हाउ यू कैन प्रैक्टिस दैट। इट वर्क्स द बेस्ट क्योंकि वो
दोनों ही माइंड को, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, दोनों को भी एक्टिवेट करने में बहुत हेल्प करता है। इवन तुम्हारी नाड़ी होती है, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन मोर अबाउट दैट राइट नाउ, तो वीडियो लंबी हो जाएगी ना फालतू में, तो यू हैव टू वर्क बाय दैट। अनुलोम विलोम से बहुत अच्छे से हो जाता है। देन बाय चेंजिंग द वे ऑफ एक्ट, changes in habits like controlling others so much, so you need to change the behaviors like this, जो भी तुम्हारे traits ऊपर में निकल के आए थे। so इस particular behavior को change करने के लिए you can do by telling them once, एक बार ही तुमने उनको बता दिया कि तुम्हें ना ये चीज़ करनी चाहिए, just give your guidance। आगे उनका काम है, अगर उन्हें करना होगा तो वो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे, let them handle that। As I said before, meditation is most important thing। वो अपने आप में ही तुम्हारी masculine और divine feminine energy को heal करने में help कर देता है। Then practical work जो तुम्हें करना है उन acts पे, मतलब particular traits पे, वो rest period to stay calm और discipline routine to activate or heal or even stay balanced with your masculine energy। रेस्ट हमने और कामनेस हमने इसलिए यूज़ किया ताकि हम लोग अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को हेल्प कर सकें, और डिसिप्लिन रूटीन हमने इसलिए किया ताकि हमारी मैस्कुलिन एनर्जी अच्छे से काम हो सके। इवन ग्राउंडिंग वर्क्स द बेस्ट। बहुत जल्दी मैं ग्राउंडिंग की टेक्निक्स शेयर करूँगी अबाउट मतलब कैसे क्या क्या एक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं जिनके थ्रू तुम ग्राउंडिंग कर सकते हो। बट मैंने पहले भी डिस्कस की थी दैट ग्राउंडिंग का सबसे बेस्ट यही रहता है, तुम सारे जितनी भी तुम सोशल वे से कनेक्ट कर सकते हो वो सब तुमने ऑफ कर दिया, फ़ोन ऑफ कर दिया, टेलीविज़न वगैरह, एंड जस्ट तुम अपना प्रेजेंट लिव कर रहे हो। सो रीपावर योर सेल्फ विद बैलेंस इन योर एनर्जी एंड बी सेल्फ कल्टिवेटेड। सेल्फ कल्टिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वंस माइंड एंड एबिलिटी थ्रू वंस ओन एफर्ट। सो शो द एफर्ट एंड हैव योर सेल्फ बैलेंस्ड। When this energy center is in the balance, we experience unconditional love in its purest form। मैंने पहले भी कहा था, you will feel mindful। तुम डिपेंड नहीं होगे, ना इवन तुम लोगों को क्रिटिसाइज करोगे, और तुम किसी से इफेक्ट नहीं होगे, तुम्हारा ऑरा भी बहुत स्ट्रांग होगा। This is the kind of love that we all feel for every being equally and without any condition, regardless of our relationship with them or their species। Basically, our heart chakra got opened। तो कोई पर्सन अजनबी भी हो, यू आर वेरी काइंड टू देम इवन, एंड कोई पर्सन तुम्हारा बहुत क्लोज है, उससे भी तुम उतना ही काइंड हो। बाय दिस यू इवन बैलेंस योर कर्मास, और फ्लो ऑफ एनर्जी तो चेंज हो ही रही है। बाय दैट वाइब्रेशन ऑफ अर्थ इवन वॉज चेंजिंग। तुम्हारे सराउंडिंग्स में तुम्हें बहुत चेंज दिखेगा। तो जब तुम किसी को पॉजिटिव और अनकंडीशनल एनर्जी दोगे तभी तुम्हें भी रिसीव होगी वो आगे फ्लो में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ही वुंडेड हैं, हम सब ही अपनी एनर्जीज में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे। काम करते रहना ही हमारे पास एक ऑप्शन है, इनर वर्क तो हम सबको ऑलवेज करना ही होता है। नाउ लेट्स मूव अहेड। व्हेन दे आर अनबैलेंस्ड, हाउ दे अफेक्ट आवर लाइफ, बोथ मैस्कुलिन एनर्जी एज वेल एज फेमिनिन एनर्जी। जब ये दोनों बैलेंस नहीं होती हैं तो ये कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हेन योर एनर्जीज आर अनबैलेंस्ड और योर एनर्जीज आर वोंडेड, यू अट्रैक्ट द सेम एनर्जी इन योर लाइफ। व्हाई द यूनिवर्स डू दिस is because they want you to put an awareness over that thing, over that act you are doing wrong, and work over it so you can attract the real and what is for you। तो जब तक तुम अपनी एनर्जीज पे काम नहीं करोगे, जो भी तुम्हारी wounded और unbalanced साइड है, तब तक वो लेसन्स बनते जाएंगे और तुम कार्मिक लोगों को ही अट्रैक्ट करते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन इज कोडिपेंडेंट, देन शी विल अट्रैक्ट अ पर्सन हु इज कंट्रोलिंग, बिकॉज डिपेंडेंसी विल बी द इन दैट पर्सन हु वांट्स टू बी कंट्रोल्ड। तो वो कोडिपेंडेंट है ना, वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहती है हर एक चीज़ के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंडिपेंडेंस इवन। तो जब वो किसी पे डिपेंडेंट रहती है तो वो ऑब्वियसली किसी से कंट्रोल होना चाह रही है, किसी के अंडर कंट्रोल चलना चाह रही है, तो वो कैसा पर्सन इंटरेक्ट करेगी? वही ना जो उसको कंट्रोल कर सके। नाउ अब उसे काम करना है एनर्जी में। सो व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट, देन द पर्सन यू अट्रैक्ट विल बी सपोर्टिव। Independence is not handling your finances. Here it is about inner strength and how you tackle situations. I have even discussed this few minutes ago, maybe, or few seconds, कि emotional independence और resilience कितना है उस person में, ये भी important है। अगर वो victim mentality में है तो वो obviously वही चीज़ें अटैक करेगा जो person उसे hurt करे, उसे छोड़े, क्योंकि वो तो उसी energy में ना, तो उस पर उसे काम करना है। Now a gentle reminder,
about the important points you need to remember. That is, be gentle with yourself. Healing is a process, so be patient and kind to yourself, because things will take time. You will take time to recover those emotions, those acts. Maybe someday you will recover it fullest and attract the best for you. Identify limiting beliefs. Examine any negative belief you hold about your energies and work on them. Seek support if needed. Expressing yourself helps the most and you will feel light. So working on your divine feminine as well as masculine energy is most important thing. I have discussed the simple acts you can do to balance your both energies while working or while being in a busy schedule. सिंपल और मतलब एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेट कर लो, खुद को ग्राउंडिंग दो, रेस्टफुल रहो, माइंडफुल बिहेव करो, बेसिकली माइंडफुली अपनी लाइफ को जियो. सिंपल और छोटे छोटे एक्ट्स हैं. अगर तुम्हें ये सब भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो सिंपली जो डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन के एक्ट हैं जिनमें तुम्हें वुंडेड फील हो रहा है उनको कर लो. वैसे कुछ भी खाना बनाना इज़ नॉट सो डिफिकल्ट थिंग. पौधों को पानी डालना इज़ नॉट समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा. सो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर. आई विल होप कि आप लोग इसे लाइक करोगे सो दैट कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग हील कर सकें अपनी एनर्जीज़ को. अगर हम लोग साथ में मिल के इस कॉन्शियसनेस को रेज करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे एंड फ्लो ऑफ एनर्जी पॉजिटिव रहेगा, अनकंडीशनल रहेगा, तभी हम सब हैप्पीली लिव कर पाएंगे और अपने डिज़ायर्स को फुलफिल कर पाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हरे कृष्णा. थैंक यू.